So the recording will start. So till the time when everyone are joining, we'll move ahead to see the echolocation designators. Okay. Today we'll be on chart number 5, and we are going to find the name one by one. Please help me to write the echolocation designator of Jaipur. Jaipur. VIJP. Victor India Juliet Papa. Very good. What about Allahabad? Allahabad. Allahabad Victor India Alpha Papa. Victor India Alpha. Very good. What about Bhopal? Bhopal. Victor Alpha Bravo Papa. Yeah. Very good. Good one. This one is a little exception. You remembered. Good. Now, Bhubaneswar. Victor Echo Bravo Sierra. Bravo Sierra. Very good. Help me to write the airport code for Visakhapatnam. Victor Echo Victor Zulu. Vijayawada. Victor Oscar Bravo Zulu. Bravo Zulu. Good one. Then Chennai and Bangalore. Who's going to write? Victor Oscar Mike. Chennai. Victor Oscar. Mike. Very good. Bangalore. Victor Oscar Bravo Lima. Alpha. Lima. आपका Bangalore International. That is BIA. Bangalore International Airport. उसका व्यूआर कोड भी BIA है. ठीक है? Okay. That is VOBL. Good one. Then Hyderabad. This is also a little exception. Hyderabad ka. Sure. Victor Oscar Victor Hotel Yankee. Hotel Yankee. Yes. In reality, this is Hotel Yankee only. VOHY. तो their VI code is HIA, but इसको बोलते हैं VOHY. ठीक. So this chart also covered for the airport name point of view, chart number 5. Okay, like this only, we'll continue seeing one by one for each of the every chart कि अगर किसी में कुछ exception हो, so that you can understand कि क्या difference है and how this difference is being measured. Now, till the time lecture 7, let me know if anything is yet to understand about you guys. कुछ समझने में बाकी रहा हो, कुछ पढ़ने में बाकी रहा हो, कोई टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ना है, anything till the lecture 7. If not, we can move ahead. Is that okay? कोई topic Alpha Tango Sierra. Anantu, आपको कोई problem over any of the topics till the lecture 7? I am holding the screen. Let me know. No, सारे sir. topics के एक बार नजर No. मारो. No. Okay. No, sir. Good one. ठीक है. So Yeah. No problem. ठीक है. Okay, so we'll move ahead, and today we are going to see some of the basic calls which is being given when your aircraft is on ground. ठीक है? We'll start पहले basic चीज से. उससे भी पहले हम पहले देखेंगे आज कि how to write the answer. That is more important. कि आंसर राइटिंग करना कैसे है.
Victor Tango Hotel Kilo Sierra. Confirm if this is Hemant. Affirm, sir. Very good. ये देखना चाहूँ. Done. Okay. Now, जो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर रहता है, सिंपल मैंने आपको कई बार दिखाया है. That will be A4 शीट पेपर. आधे में फ्लाइट प्लान लिखा हुआ रहेगा, राइट. एक कॉर्नर में चार्ट नंबर लिखा हुआ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर नहीं लिखा होगा तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि कौन से चार्ट को फॉलो करना है. देन 1/3 में ये रहेगा, ठीक है. सॉरी, 1/3 नहीं, 3/4 में क्वेश्चंस और फ्लाइट प्लान लिखे रहेंगे. 1/4 आपका पेज बचा हुआ रहेगा फ्रंट पेज पे, और उसमें ऑटोमेटिक, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक एक सेक्शन ब्रेक बनाया हुआ रहेगा. एक साइड लिखा रहेगा TX, एक साइड लिखा रहेगा RX. उसके बाद इस पेज का बैक पोर्शन खाली रहेगा, कंप्लीट ब्लैंक. एंड as many pages you needed for the examination, they are ready to give you. ठीक है, आपको जितने पेजेस चाहिए आपको मिलेंगे. And all those supplemental pages will be A4 sheet white color का blank one. उस पे कोई नोटेशन नहीं बना रहेगा, बट आपके मेन पेपर पे एक TX RX का बाउंड्री डिवीजन रहता है. So how we are going to write answer? आपको जो ब्लैंक शीट मिलता है इसको भी पहले 2 पार्ट में आप लोग डिवाइड कर लो. If feasible, use your pen to draw a line. If you can divide in equal half, or simply fold this page. ठीक है, इस पेज को हाफ में फोल्ड करो तो ऑटोमेटिक एक क्रीच बन जाएगा बीच में. जब आप पेजेस को हाफ में फोल्ड करोगे लेंथ वाइज तो ऑटोमेटिक. यस यस यस. आर यू रीडिंग मी टू एनीवन? So I'm saying when you fold this page into 2 equal half, एक ऑटोमेटिक इस पे इंप्रेशन पड़ जाएगा. ठीक है, एक इंप्रेशन आ जाएगा, एक क्रीच आ जाएगा बीच में. इफ यू वांट, आप अपने पेन से उसको एक लाइन खींच दो. ठीक है, और अगर आप कैपेबल हो टू अंडरस्टैंड द डिवीजन तो आप वहां पे लाइन मत खींचो, बट आप एक मार्जिन रखना कि हमारा पेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है, द वेरी फर्स्ट रूल. व्हाई वी आर डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट? लेट्स सी. Because the communication is going to between into 2 stations. First station will be student and second one will be examiner. तो आपके फ्रंट पोर्शन में ऑलरेडी एक हिंट दिया हुआ है कि दिस साइड लेफ्ट विल बी ट्रांसमीटर साइड, राइट विल बी रिसीवर साइड. सिमिलरली जब आप एक लाइन खींचोगे या फिर अपने पेज का डिवीजन करोगे, लेफ्ट साइड दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसमीटर साइड, राइट साइड इट विल बी ट्रीटेड एज रिसीवर साइड. तो आपको पेज को पहले 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेना है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, डिवीजन में लाइन देना है कि नहीं देना है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू डिवाइड इनटू 2 लाइंस, ठीक है, समथिंग हियर नीड टू बी केयरफुल. व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस शीट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, तो एक साइड तो हो गया ट्रांसमीटर, दूसरे साइड हो गया रिसीवर. नाउ हाउ टू राइट द आंसर? आप जो ट्रांसमिट करोगे उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, व्हाट एवर यू आर ट्रांसमिटिंग, एंड व्हाट एवर यू आर रिसीविंग मीन्स अगर एग्जामिनर ने कुछ रिप्लाई दिया, एज ए ATC एग्जामिनर ने आपको कुछ रिप्लाई दिया, तो आप उसको राइट साइड में लिखोगे, मीन्स रिसीवर के एंड पे लिखोगे. Transmission will be noted into left hand side and reception of the calls will be noted into right hand side. Like this. Whatever the examiner will tell, you are going to write in right side.
whatever you are saying to examiner, you will note in left hand side. Okay. अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, ओके, ये डिजाइन क्यों बना रहे हो? Why this one and this communication is having a zigzag model? देखो आता हूं, देख रहे हो कम्युनिकेशन के बीच में क्या होता है कि when you are transmitting anything, ठीक है, when you are transmitting anything, आपने उसको यहाँ पे नोट किया, बट when you are receiving any call, आप उसके पैरेलल में कुछ नहीं लिखोगे, नो पैरेलल राइटिंग, ठीक है, किसी भी कॉल के पैरेलल में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। क्यों? अगर आप सेम कम्युनिकेशन में, ठीक है, ट्रांसमिट किया, ठीक है, एंड रिसीविंग को एक ही टाइम पे पैरेलल राइटिंग करोगे, मींस लेफ्ट हैंड साइड में इधर ट्रांसमिशन इधर रिसीवर, अगर एक दूसरे के पैरेलल में ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन होता है, इट इंडिकेट्स कि ट्रांसमिशन और रिसीविंग एक ही टाइम पे हुआ है, इन अ सिंगल टाइम फ्रेम, ठीक है, इन अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसमिशन भी हुआ है एंड रिसेप्शन भी हुआ है, विच इज नॉट अलाउड। एक बार में आप या तो ट्रांसमिट कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, कम्युनिकेशन का ये रूल है, ठीक है। जब भी आप पीटीटी प्रेस करते हो, ट्रांसमीटर, जब भी आप पीटीटी प्रेस करो या ट्रांसमीटर का माइक बटन प्रेस करो, जैसे ही आप माइक बटन प्रेस करते हो, देखते हो साउंड ऑटोमेटिक एक कट का आवाज देता है। आप स्पीकर पे कभी गौर करना, द मोमेंट यू विल प्रेस द पीटीटी, रिसेप्शन विल बी क्लोज्ड, साउंड थोड़ा सा वहां पे कट हो जाएगा, आपको वो कट का आवाज भी सुनाई देगा इन स्पीकर। मींस एक सिंगल टाइम पे आप सिर्फ ट्रांसमिट कर सकते हो, और उसी तरह से एक सिंगल टाइम पे आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो। तो जिगजैग मोशन में लिखना है हमेशा, आपने जो बोला यहां लिख दिया, उसने जो बोला आपने यहां लिख दिया, फिर आपने कुछ रिप्लाई किया तो स्पेस छोड़ के, इसके पैरेलल ये स्पेस खाली छोड़ के, ठीक है, थर्ड नंबर पे। देन फिर और कुछ रिप्लाई आया फोर्थ नंबर पे, फिर आपको कुछ ट्रांसमिट करना है लाइक दिस, फिर वहां से कुछ रिप्लाई आएगा लाइक दिस, जिगजैग में लिखना है, पैरेलल राइटिंग नहीं करनी है। क्यों? टू अवॉइड कंफ्यूजन कि ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन बोथ हैपेंड एट द सिंगल टाइम, अलग अलग टाइम पे हुआ है ना, तो इट इंडिकेट्स टू डिफरेंट टाइम, एज वेल एज इट आल्सो इंडिकेट्स द इंक्रीजिंग और द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम। अगर आपका कम्युनिकेशन ऊपर लिखा हुआ है, यानी आपने पहले बोला, फिर इसके नीचे रिसीव हुआ, फिर इसके नीचे ट्रांसमिट हुआ, इसके नीचे रिसीव हुआ, यानी अगर हम इसको टाइम पे बिठा दें तो सपोज 11 o'clock पे आपने ट्रांसमिट किया, सॉरी 11:01 पे आपने ट्रांसमिट किया, 11:02 पे रिसीविंग हुआ, फिर 11:03 पे ट्रांसमिट किया वन मोर टाइम, एंड 11:04 पे वन मोर टाइम द कॉल हैज बीन रिसीव्ड। सो इट इंडिकेट्स कि पहले क्या हुआ, पहले ट्रांसमिशन हुआ देन रिसेप्शन हुआ, फिर पहले ट्रांसमिशन हुआ देन रिसेप्शन हुआ। अगर आप अपने पेपर पे, ठीक है, सपोज ऊपर में ऐसा रिसेप्शन लिखा एंड ट्रांसमिशन यहां पे लिखा हुआ है, इट विल इंडिकेट्स कि फर्स्ट यू हैव रिसीव्ड ए कॉल एंड देन यू हैव गिवन अ रिप्लाई। तो जो ऊपर रहेगा वो पहले हुआ, जो बाद में आएगा दैट इज अ सेकेंड, ठीक है। सो वी नीड टू राइट द आंसर इन जिगजैग मोशन, पैरेलल राइटिंग नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर टिल नाउ? समझ में आया? दिस इज गिविंग इंडिकेशन कि पहले कौन सा एक्शन हुआ। क्लियर सो फार? क्लियर। अब आप बोलोगे सर ऐसा में तो बहुत पेज बर्बाद होगा। कोई बात नहीं, आपने फीस भी तो भरा है ना, जितना पेज आपको लगे आप यूज करो, नेवर अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपने फीस भरा है, आपको पूरी आजादी है नुकसान कराने की। नाउ बिफोर गोइंग अहेड, विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो इज गोइंग टू गिव मी अ फ्लाइट प्लान। आप अभी के लिए अगर आप चाहो तो रेफरेंस ले सकते हो, आई विल आल्सो शेयर द स्क्रीन,
flight plan wala, and using those parameters you are going to be give me a hypothetical flight plan. अच्छा वही निकला हुआ है. Yes. You can have a look on the screen or in your note. Give me a plan. Okay. Victor Tango Lima Kilo Kilo. Okay. Flight level 350. Victor Alpha November Papa 2. Victor Alpha Bravo Papa. हाँ, इस चीज को आप सिटी के नाम से बोल सकते हो. दिस इज नॉट बोल नेसेसरी कि हाँ मुंबई टू नागपुर. ओके, एक्सेप्टेबल. नागपुर टू मुंबई, राइट? नहीं नहीं, नागपुर टू नागपुर to भोपाल. Bhopal. Very good. Instrument flight rule. Instrument flight rule. Very good. Instrument flight rule. Wake turbulence. Wake turbulence small. Wake turbulence Low. L. low. Very good. Alternate aerodrome. Alternate aerodrome. Jabalpur. Jabalpur. Very good. Route. Whiskey 38. 38. Time of departure. Mhm. 0930 Zulu. 09er. 09er 30 Zulu. नहीं, आप सिर्फ 09er 30 बोलो, वो ऑटोमेटिक यूटीसी काउंट किया जाएगा. Okay, copy. Departure time 09er 30. Aircraft type B200. Any other information nil. ठीक है. Equipment standard. Equipments standard. Okay. Now, you are trying to say that you are operating an aircraft, Victor Tango Lima Kilo Kilo, that is a B200 aircraft, flight level 350. Okay. Will fly at flight level 350, going from Nagpur to Bhopal, alternate aerodrome Jabalpur. Wake turbulence low under IFR. Route you are going to follow Whiskey 38. Departure time is 0930. All equipment standard. Any other information nil. What you missed? Type of operation. You remember? Type of operation. देखो. Schedule. Okay. ठीक. Schedule का क्या होगा? Non-schedule. Schedule. November. Private. Non-scheduled flight means November. See, even after knowing these 13 parameters, you should pay attention. That is thorough. एक करके counting. See how I had count all those 13 parameters. So whenever you are giving a plan, just do a cross check. ठीक है? बिल्कुल शर्माना नहीं है कि मैं काउंट कर रहा हूँ. No, बच्चे के जैसे. If you need finger, count on fingertips. It should be 13 parameters at any case. कुछ मिस हो गया आपको तुरंत ये रियलाइज हो जाएगा. Done? So you have ensured कि all 13 parameters are available here. Very good. So you mean to say कि आप मुंबई से नागपुर से भोपाल का फ्लाइट ले रहे हो with an aircraft Victor Tango Lima Kilo Kilo, and this is your flight plan. Very good. Non-scheduled flight. Okay. Now please also let me know which chart you have chosen for this plan. Hypothetical. अरे नहीं, number, chart number. Chart number 1. Chart number 1, version 2, right? Yeah. So
This is the chart you have chosen. You have planned a flight from Nagpur to Bhopal. Very good. So everything is in front of you. Here is Bhopal and here is Nagpur. And this is a plan came in front of you. Okay. Now, Sir, I just have have a a doubt. look. Yes, yes, go ahead. Go ahead. Route, can you confirm route is Whiskey 3H? Yes. Nagpur to Bhopal. Is that? Nagpur to Bhopal. Okay. Look at the screen. Look Okay, at the sir. screen. Yeah, sir. I have missed that one. That's why. Okay. Okay. ठीक है. कोई बात. Now, this is the plan among you. And चार्ट तो हमने देख लिया. अब पहले एक बेसिक फ्लाइट ऑपरेशन को हम लोग समझते हैं. देन हम लोग पूरे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. टुडे वील हैव सम प्रैक्टिस, बट बिफोर दैट वील अंडरस्टैंड द बेसिक फ्लाइट प्लान की क्या प्लानिंग रहती है एयरक्राफ्ट की. There are two airports. Suppose this is A and this is B. दो एयरपोर्ट है. क्या होगा? आपका एयरक्राफ्ट एप्रोन पे पार्क रहेगा. You will have a plan first कि आज 10 बजे मैं डिपार्चर करूंगा. And then after your plan, you will have some pre-flight checks. After the pre-flight checks, आप अपने एयरक्राफ्ट का इंजन स्टार्ट करते हो, जिसके लिए आपको पुश बैक करना पड़ सकता है, टोइंग करनी पड़ सकती है, अलाइंग होना पड़ सकता है. ठीक है. एंड पहले आप अपने एयरक्राफ्ट को, पैसेंजर को बिठाओगे, इंजन स्टार्ट करोगे, पुश बैक करोगे, फिर टैक्सी करते हुए रनवे तक जाओगे. ठीक है. टैक्सी करते हुए रनवे तक आए. रनवे पे टेक ऑफ रन हुआ, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया. When you take off, initially you will have turning left or right to catch the intended route. जब आप रूट को कैच करते हो, then you will started climb furthermore to reach to the ceiling altitude, or sometimes it is being also called as cruising altitude. आप क्रूज करते हो. इंजन स्टार्ट, टैक्सी, टेक ऑफ, इनिशियल क्लाइंब, cruising, straight and level flight. And then a moment comes when you start descending. When you start descending, you will join air traffic circuit of any airport. You have been landed. ठीक है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी दूसरा रनवे बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए. ठीक है. स्टार्ट डिसेंडिंग, ज्वाइनिंग एन एयर ट्रैफिक सर्किट, लैंड कर लिया. लैंड करने के बाद फिर वहां से टैक्सी करके एक स्टैंड के ऊपर पार्क करोगे, पैसेंजर को उतार दोगे. So this is complete journey in front of you. Is that okay? Engine start किया, push back, taxi, take off, initial climb, cruise, descend. Again joining the air traffic circuit, that is known as approach, land, फिर टैक्सी करोगे, टैक्सी इन, एंड देन अपने पैसेंजर को उतार दोगे. बेसिकली और मोर और लेस, this one is the only plan for every kind of flight. यही रहता है हर जगह. चाहे आप कमर्शियल ऑपरेशन करो, चाहे आप प्राइवेट ऑपरेशन करो, चाहे आप ट्रेनिंग करो, सेम. एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होगा, फ्लाई करेगा, लैंड करेगा. दैट्स ऑल. द आरटी इज ऑल अबाउट द मोमेंट यू आर गोइंग टू फेस. ठीक है. नॉट अ प्रॉब्लम. आरटी कॉल क्या होता है? बेसिकली आपको अपना एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट पे ले जाने के लिए एटीसी से जितनी बार बात करनी पड़ेगी, जिस जिस टाइप के सिचुएशन अराइज हो सकते हैं, उस केस में आप कैसे कम्युनिकेट करोगे विद द एटीसी, दैट इज ऑल टुगेदर आरटी इज. इससे ज्यादा कुछ नहीं. बेसिक जर्नी यही है. आपका एयरक्राफ्ट एक जगह से टेक ऑफ करके दूसरी जगह लैंड करता है. क्या क्या सिचुएशंस उसके सामने आएंगे, उस सिचुएशन को आप कैसे कम्युनिकेट करते हो टू द एटीसी, दैट इज ऑल टुगेदर एन
RT communication. That's all. Okay. So for the help, I'll keep map along with you for few days. कुछ दिन के लिए मैं मैप आपके सामने रखूंगा. उसके बाद I'll expect कि maps and everything is always available with you. As I told कि आपको इन सारे charts का hard copy print करना है. So I'll expect कि hard copy of these charts is available with you. Now हमने देखा कि कॉल कैसे करना है. Okay, so you are at Nagpur airport. The question is in front of you. Perform the readability check. Okay, now Victor Tango Lima Kilo Kilo is going to give the answer for this. The question is in front of you. Perform readability check. And everybody shall observe how I am writing the answer. And I'll also suggest when you are writing the answer, you should have, when you are giving the answer, you should write it too. आप लिखो भी और बोलो भी. Actual practice. So give me the call of readability check. Here I'll write in behalf of you. Don't think कि मैं तो receive कर रहा हूँ फिर transmitter side में क्यों लिख रहा हूँ. ठीक है, मैं Victor Tango Lima Kilo Kilo के behalf में answer note down करूँगा. Okay, go ahead. The question is obtain readability check. या फिर perform readability check. Yes, Lima Kilo Kilo. Nagpur ground, Victor Tango Lima Kilo Kilo on 121.9er. How do you read? Victor Tango Lima Kilo Kilo, Nagpur ground. Read you 5. How do you read? Read U5, strength 5. Victor Tango Lima Kilo Kilo. अच्छा, अब जब आप आंसर कर रहे हो आप लिख नहीं रहे हो, राइट? नहीं. How I can understand? Because of your rate of speech. आपने तेज बोला तो आप लिख नहीं रहे हो. आपके सामने मैं जब आंसर कर रहा था तो मैं आंसर राइटिंग भी कर रहा था. सो यू हैव एबल टू ऑब्जर्व कि जब मैं हाउ डू यू रीड बोल रहा था तो मेरा रेट ऑफ स्पीच काफी स्लो हो गया था. इजंट इट? आप सबने नोटिस किया? तो Yes, जब sir. आप लिखोगे और बोलोगे, जब दोनों एक्शन एक साथ करोगे ना, तो लिखना तो पेन से पड़ता है ना, बोलना तो बहुत इजी है. तो आप लिखोगे हाउ डू यू रीड. इतना इतना टाइम लगता ही लगता है. सो व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग, यू विल हैव सम टाइम लैप्स. इसी से पता चलता है कि आप लिख रहे हो, साथ ही साथ बोल भी रहे हो. सो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि हाउ योर एक्शन इज. सो कोई बात नहीं, दिस इज वेरी फर्स्ट इंप्रेशन, डोंट माइंड इट. बट आपको हमेशा ये प्रैक्टिस करनी है कि लिखो और बोलो साथ साथ में. ठीक है, नो डिले, नो कॉम्प्रोमाइज. अभी कभी भी ऐसा नहीं कि पहले बोल लेना है फिर फटाफट लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर फटाफट बोल लेंगे. नो, both the action at the same time. You need to carry it. Okay, for the practice. Now, you have also observed how this call has been noted in the real time scenario. पहले जो रीडेबिलिटी चेक हुआ फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड, ये नोट किया. देखो, इमीडिएट इसके नीचे, इस लाइन के इमीडिएट बिलो रिसीवर साइड का कॉल नोट हुआ. फिर इसके नीचे इमीडिएट ट्रांसमीटर साइड का कॉल नोट हुआ. पैरेलल राइटिंग हुई नहीं. यही आपको फॉलो करना है. लाइक दिस ओनली यू नीड टू राइट. इट विल गिव इंडिकेशन कि पहले ट्रांसमिशन हुआ, फिर रिसेप्शन हुआ, फिर एक ट्रांसमिशन हुआ.
Clear to you? Clear, sir. Now, अब दूसरा चीज, when you have told everyone we are who are new in class, you can note this call as in standard answer. This one is good. आप इसको नोट बना सकते हो हेडिंग देके कि perform readability check. So this is the example of readability check. Yes, yes. एक डाउट था कि हाँ, जब हाँ. उन्होंने रेडियो 5 बोला ना तो आपको कॉल नहीं किया नागपुर ग्राउंड पर, तो मतलब हर वक्त नेसेसरी नहीं है क्या? मतलब Okay. स्टैंडर्ड Okay, understood. Very good. Good one. Now, one by one illustrate करता हूँ. W1, W2, ठीक है? W4 and W3 यहाँ पे यूज किया गया. यहाँ पे W1 यूज किया गया, W2 यूज किया गया and W3 यूज किया गया. In this W3 and W2, why this station has not told नागपुर ग्राउंड, राइट? कि आपने नागपुर ग्राउंड यहाँ पे क्यों नहीं बोला? ओके, सपोज इन नॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इफ आई एम टॉकिंग टू अनंतु, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग टू अनंत, सो हाउ आई से कि इनिशियल ग्रीटिंग में हम उसका नाम लेते हैं कि हाय अनंत, आई एम अंकुश, हाउ आर यू डूइंग वेल, लाइक दैट वी कैन कम्युनिकेशन. एंड जब हम उस कम्युनिकेशन को रिपीट करते हैं या फिर वी आर इन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, वी ट्राई टू अवॉइड द नेम. दैट इज बेसिक अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है, उसमें हमेशा ये बताता है नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, राइट? एंड वी कैन नॉट यूज नाउन एवरी टाइम. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, दे, दिस, लाइक सब. ये सब हम लोग ऐसे राइटिंग में पढ़ते थे ना कि राम इज अ गुड बॉय, लाइक दैट. सॉरी, राम इज अ गुड बॉय, ही इज ऑल्सो गुड इन, ही इज ऑल्सो क्या कहते हैं, गुड इन हिज एजुकेशन, ही इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड, लाइक दैट. तो प्रोनाउन यूज करते हैं. नाउ जब हम किसी स्टेशन से पहली बार कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमारे दो कम्युनिकेशन के बीच में अगर टाइम गैप है, तो मैंडेटरी W1, W2 वाले रूल को फॉलो करेंगे. एंड व्हेन वी आर कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद एनी स्टेशन, सीधे मुद्दे की बात करेंगे एंड विल क्लोज विद आवर कॉल साइन डायरेक्टली. ठीक है? ओके, इसको एक दूसरे वे में ऐसे भी समझा जाता है. वेरी गुड, यू हैड रेड द क्वेश्चन. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड लाइक दिस. इसको दूसरे वे में एक चीज और समझा जाता है. This one is proper professional talk as per RT. ठीक है, proper professional talk by using rules of 4 Ws. And here this is a casual talk. Casual मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है कि बदमाशी है. No, casual means not so professional but okay to go ahead. ठीक है, good to go ahead. तो एक बार जब भी हम किसी नए ATC से बात करेंगे, प्रॉपर W1, W2, W3 फॉलो करेंगे. फिर जब उसके साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में रहेंगे, विल अवॉइड बीइंग सो मच प्रोफेशनल. फिर धीरे धीरे हम लोग कैजुअल पे आ जाएंगे, मुद्दे की बात करेंगे, क्लोज विद द कॉल साइन. डन? वेरी गुड. गुड. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग. अभी हमने लिखा नागपुर कंट्रोल, सॉरी नागपुर ग्राउंड, राइट? नागपुर ग्राउंड. देखो नागपुर ग्राउंड हमने कैसे लिखा? NNP SMC. कितने तरीके से हम नागपुर ग्राउंड लिख सकते हैं इन RT कॉल? सपोज वी आर सेइंग नागपुर ग्राउंड, सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक नागपुर ग्राउंड. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस NNP ग्राउंड. NNP क्या है इसका? VOR कोड. तो बोलेंगे नागपुर, लिखेंगे NNP. गॉट इट? सिटी का नाम लेना है लेकिन लिखना है उसका लेटर कोड. और वी कैन राइट इट एज अ टिकाऊ लोकेशन डेजिग्नेटर. नागपुर ग्राउंड बोलना है, ग्राउंड लिखना है SMC. ठीक है, सो इन दीज मेनी वेज वी कैन राइट द नेम ऑफ ATCs. क्लियर? तीनों तरीका समझ में आया?
आपको जो सुटेबल लगे आपके राइटिंग के हिसाब से आप उसमें से ऑप्ट आउट कर लो। ठीक है, आपको दोनों में से जो सुटेबल लगे यू कैन ऑप्ट इट आउट। ठीक है, नागपुर ग्राउंड फुल डिटेल में भी लिख सकते हो, एनएनपी ग्राउंड भी लिख सकते हो। इन द टर्म्स ऑफ इकॉल लोकेशन डेजिग्नेटर आल्सो यू कैन राइट VANP SMC, बोलना लेकिन हमेशा यही है नागपुर ग्राउंड। Am I clear so far? Yes, no, anything? Clear sir, yes sir. Very good. So we have seen ki how to perform a readability check and with the writing practice. Now the question will be little changed. This time Alpha Tango Sierra is going to give the answer. The question is, are you comfortable in answer writing? Tango Sierra, please let me know. Yes, sir. Yes. ठीक है, एक चीज और बताता हूं। सपोज दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कॉल साइन। इफ यू वांट यू कैन से विक्टर टैंगो अल्फा टैंगो सियरा ऑलवेज। और एक और टेक्निक है, आप डायरेक्ट बोलो विक्टर टैंगो सियरा, VT का T और रजिस्ट्रेशन नंबर का फर्स्ट लेटर कोड, इसको आप गायब कर दो। दिस इज ऑल्सो इन ट्रेंड एंड दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम यू कैन ऑल्सो कॉल लाइक दिस विक्टर टैंगो सियरा, लेकिन इनिशियली नहीं। ठीक है, इनिशियली हमेशा फुल प्रोफेशनल। जब अनजान लोग मिलते हैं तो कैसे फुल प्रोफेशनल, धीरे धीरे पता चलती है कि वो कितना बदमाश है, फिर तो मारपीट सब हो जाता है दो फ्रेंड में। When I'll meet you first time, you will be full professional with me. Hello sir, how are you? फिर धीरे धीरे महीने भर साथ रहेंगे, you will become little casual, हंसी मजाक शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ा और कैजुअल, ऐसा भी मोमेंट आता है मारा पीटी सब हो जाती है। ठीक है, so this is the common behavior. So whenever you are giving initial call, try to take full call sign always. And when you become little casual, VT का T और रजिस्ट्रेशन नंबर का पहला गायब कर सकते हो। दिस कॉल बी ऑल्सो कॉल्ड एज विक्टर टैंगो सियरा। आपने सुना होगा कई बार एयरपोर्ट पे, दिस इज वेरी कैजुअल। विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो तो बोलते हैं विक्टर लीमा किलो। ठीक है, विक्टर टैंगो चार्ली डेल्टा पापा तो बोलेंगे विक्टर डेल्टा पापा। आप सबने सुना है ऐसा कुछ कम्युनिकेशन विद द टावर? Yes sir. So this thing also be monitored. रजिस्ट्रेशन नंबर को शॉर्टकट में ऐसा भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा टैंगो सियरा, द क्वेश्चन इज फॉर क्वेश्चन इज फॉर यू। द क्वेश्चन इज ऑब्टेन इंजन रनअप परमिशन। आप सब इसको नोट करना एज ए स्टैंडर्ड कॉल, इंजन रनअप परमिशन। इंजन रनअप का परमिशन ऑब्टेन करिए। प्लान इज विद यू, ठीक है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। इंजन रनअप का परमिशन Nagpur ground. Victor Tango Lima Kilo Kilo on 121.9er. Would like to perform engine run up for 0.5 minutes on ideal power. Request permission. नॉट हैप्पी। ठीक है, थोड़ा सा लगता है प्रैक्टिस में ब्रेक आया है। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द कॉल, जस्ट हैव अ लुक आउट, ताकि सबको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पता चले कि हाउ दिस कॉल इज गिवन। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अल्फा टैंगो सियरा इज वन ऑफ आवर ओल्ड स्टूडेंट एंड ही हैज अ सेशन गैप आल्सो। तो मैंने सोचा कि उससे ट्रायल ले लिया जाए एक बारी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव द फाइनल कॉल, एवरीवन कैन नोट इट हाउ दैट विल गो, what are the parameters important, we need to understand each and everything. This call may go like this.
Nagpur ground, Victor Tango, Lima Kilo Kilo on 121.9er. B200 wake turbulence light. Current position on apron 3 stand 4. Request engine run up on idle power. Duration 15 minutes. देखो क्या सब है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करता हूं मैं एक करके। नागपुर ग्राउंड को हमने कॉल किया कि वी आर विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो एंड यूजिंग द फ्रीक्वेंसी 121.9। देन अपना आइडेंटिफिकेशन दिया डिटेल्ड में कि वी आर ऑपरेटिंग अ B200 एयरक्राफ्ट हैविंग वेक टर्बुलेंस लाइट और लो। अब वेक टर्बुलेंस बोलना इज मैंडेटरी व्हेन योर इंजन्स आर ऑन। मैंने आपको दिखाया था कि क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, आपके पीछे खड़ा कोई छोटा सा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर जाएगा आपके पीछे से, तो फिर रनवे क्यों बनाया जब अप्रोच से ही फ्लाइट हो रही है तो, ठीक है। सो किसी भी केस में ऐसा सिचुएशन आए कि आपका इंजन ऑन होने वाला है, वेक टर्बुलेंस जरूर से जरूर इंक्लूड करो अपने कॉल में। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंजन रनअप तो करोगे, आप हो कहां पे, ठीक है। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर कॉल इज आइडेंटिफिकेशन। अपने आप को एक्सप्लेन करो, हु आर यू, ठीक है। कॉल का फॉर्मेट सीखिए। अभी तो W1 W2 इज द communication format. This is the call answer writing format. In your answer, the very first thing shall be identification, complete identification, introduction though. Who are you? We are Victor Tango Lima Kilo Kilo, B200 aircraft, wake turbulence low. Then next important thing, what is your position? आप एयरपोर्ट के कौन से कोने में हो, ठीक है। Our current position is apron 3 stand 4. Then what you want, ठीक है। देन आएगा सिचुएशन या कंडीशन या फिर रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर पर्पस, जो भी है आपके कॉल का। अपने कॉल को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है हमेशा। फर्स्ट फुल आइडेंटिफिकेशन, फुल इन डिटेल जितना ज्यादा दे सकते हो। दूसरा योर पोजीशन एंड थर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कॉल, ठीक है। तो आंसर राइटिंग करो हमेशा 3 सेक्शन में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, योर करेक्ट पोजीशन एंड देन इंटेंशन। 3 चीज अगर 3 सेक्शन में आपका आंसर डिवाइड होना चाहिए, देन योर कॉल विल लुक्स कंप्लीट, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमको करना था ग्राउंड रन, ओके। आवर करेंट पोजीशन इज एप्रोन 3 स्टैंड 4, रिक्वेस्ट इंजन रन अप ऑन आइडल पावर, ठीक है। तो ये जो आपका कार्यक्रम चलेगा कितने देर तक चलेगा, ड्यूरेशन 15 मिनट। ये हमारा सारा तामझाम 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्लियर टू ऑल एंड होप एवरीवन विल आल्सो नोट द आंसर। आंसर नोट करना आप लोग शुरू कर दीजिए ऑन योर पेपर, ठीक है, ऑन योर नोटबुक, बिकॉज दीज आंसर्स आर स्टैंडर्ड, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कई बार आपको देख देख के लिखने की जरूरत पड़ सकती है। So we have divided our call into 3 sections. That's why it looks beautiful. Now this one is the transmission part. अभी तो ATC से परमिशन आना बाकी है, ठीक है। ATC told Victor Tango Lima Kilo Kilo Nagpur ground. Engine ground run, EGR मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, हाँ। Engine ground run approved. Report after completion. मेरे हैंडराइटिंग पे नहीं जाना, हाँ कोई भी, मैं जानबूझ के गड़बड़ लिख रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर बचने के लिए कुछ भी बोल रहे हो, नो, आई वांट कि आरटी इज ए कम्युनिकेशन ऑफ ऑडियो बेस्ड थ्योरी। आपको सुन सुन के लिखना है,
स्क्रीन पे तो मैं लिख देता हूँ कि अगर थोड़ा नजर उठा के देखो तो पता चले कि लिख क्या रहे हैं, ठीक है। बाकी आप टोटली डिपेंडेंट रहो ऑडियो पे। कुछ दिन के बाद मैं अपना कैमरा भी बंद कर लूंगा, ठीक है, सिर्फ ऑडियो जाएगा अब तक। सो आरटी इज ऑल अबाउट लिसनेबिलिटी, सुनना, रीडेबिलिटी। तो स्क्रीन पे आप रेफरेंस लो बट सुनने पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, एटीसी ने कहा ओके यू आर अ विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, तो इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड, बट रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, जब आपका ये कार्यक्रम खत्म हो जाए ना, देन रिपोर्ट मी बैक। इसके रिप्लाई में आप क्या बोलोगे? उसने मैं कर दूंगा आपको, सर। हाँ गो हेड गो हेड गो हेड। Engine turn up approved. Wilco Victor Lima kilo kilo. हाँ ये फंस गया, शॉर्टकट तो बोला तो शॉर्टकट में ऐसे क्यों कर दिए? आपने विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो का अगर आपको शॉर्टकट बोलना है, देन विक्टर एल के क्या है, लीमा किलो किलो, कुछ तो आपने गड़बड़ बोला। आपने 4 वर्ड Victor लेटर Tango यूज। Lima Victor Tango Lima kilo kilo बोला सर। ओके ठीक है, आई हैव हर्ड कि आपने सिर्फ विक्टर लीमा किलो किलो बोला, आई थॉट कि आपने 4 लेटर यूज किया। ओके सो Okay. ठीक, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय लिसनिंग साइड। जब भी आप शॉर्टकट यूज करो ना, मैं भी जो था नेटवर्क इशू सर। हाँ दैट मे बी अ केस। सो शॉर्टकट होके वो 3 डिजिट का बनेगा, 5 टूट के 3 बनेगा, लास्ट के 2 ये और इसका फर्स्ट। सो ये बनेगा विक्टर किलो किलो। नाउ अभी आपने बोला इंजन रनअप अप्रूव्ड, विल को, एंड देन क्लोज विद योर कॉल साइन। अब इसको डिकोड करते हैं कि इस सब का क्या मतलब है। विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, ठीक है। नाउ इंजन ग्राउंड रन अप्रूव्ड, एक आपको अप्रूवल मिला। आपके कॉल में रीडबैक होना चाहिए किसी भी टाइप के अप्रूवल का, किसी भी टाइप के परमिशन का, किसी भी टाइप के क्लियरेंस का, किसी भी टाइप के पैरामीटर का, डेटा का। आपको बोला गया इंजन रन अप अप्रूव्ड, आप उसका रीडबैक दो एज इट इज, जैसा उसने बोला वैसा ही उसको वापस करो। क्यों? क्योंकि कल को अगर एक केस बन गया, ठीक है, और इफ देयर इज अ सिचुएशन, ही कैन नॉट डिनाई कि मैंने आपको अप्रूव नहीं किया था, आपने इंजन स्टार्ट कर लिया। सपोज उसने बोला नॉट अप्रूव्ड, बस गलती से आपको पता चला कि ही इज सेइंग अप्रूव्ड, यू हैव ऑब्जर्व लाइक दिस, लाइक जैसे भी मेरे से मिस्टेक हुआ कॉल साइन सुनने में। सो इफ एटीसी टोल्ड कि नॉट अप्रूव्ड, आपको लगा उसने बोला अप्रूव, तो आप इंजन चालू कर लोगे, फिर पीछे से फॉलो में भेज देगा। तो जैसे ही उसने कुछ परमिशन दिया, रीड बैक दो। अगर उसको आपत्ति है तो तुरंत रोकेगा कि नो 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 वी हैव नॉट अप्रूव्ड, प्लीज डोंट डू रन अप, राइट। नहीं रोका, यू आर फ्री। तब आप बोलोगे मैंने रीड बैक तो दिया था, आपने रोका क्यों नहीं? इफ आई वॉज नॉट एबल टू रीड समथिंग properly and when I had given read back, why did not you interrupt me? ठीक है। So any permission, any parameter is being given as a read back so that both of the station can be double sure कि जैसा उसने बोला आपने वैसा ही सुना, कोई चेंज नहीं है। अगर उसको लगेगा कि उसने जैसा बोला आपने उसका अपोजिट सुना, तो वो आपको तुरंत रोकेगा, नो इंजन रन अप नॉट अप्रूव, डोंट डू, वेट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, जो भी है। सो you had given a read back, engine run up approved, then it told wilco, wilco मतलब होता है क्या, will comply, कि हम कंप्लाई कर लेंगे। क्यों करेंगे कंप्लाई? क्योंकि उसने हमको बोला रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, जब आपका कार्यक्रम हो जाएगा ना, तो वापस रिपोर्ट कर देना कि मेरा ग्राउंड रन खत्म हो गया। तो इसके बिहाफ में हमने बोला विल को, इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया हमने एज अ विल को। विल को हम कब यूज करते हैं? रिमेंबर द फ्रेज कि हम आपके एक्शन को एग्री कर गए, बट वी कैन नॉट परफॉर्म एट दिस मोमेंट, वी विल कंप्लाई इट इन फ्यूचर, बट आई एम गिविंग यू अ सेटिस्फैक्शन की ओके, जब हम ग्राउंड रन कर लेंगे तो आपको वापस से रिपोर्ट कर देंगे। इसके लिए हमने यूज किया विल को कि फ्यूचर में इसको कंप्लाई करना है। देन एंड हु इज द कॉलिंग? विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो। विल को के बदले आप
दूसरा चीज भी बोल सकते हो, अ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। whenever you are giving a call in RT, either you can use phrase or you can use simple English grammar। ठीक है, उसने बोला रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन, ये तो उसने एक टास्क दे दिया, जब आपका काम हो जाएगा तो आप मुझे रिपोर्ट करना। सो वी कैन ऑल्सो से engine run up approved as a readback, and then we can also say will report after completion। this is generous language, general, कि आपने कहा रिपोर्ट कर दो तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। will report after completion, विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो। और इसी का तो फ्रेज है, विल रिपोर्ट इन फ्यूचर का ही तो फ्रेज है विल को, तो आप ये भी बोल सकते हो इंजन रन अप्रूव्ड विल को विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो। क्लियर एवरीवन, समझ में आया सबको? क्लियर सर। आपने इंजन रनअप का अप्रूवल मांगा, एटीसी ने देने का मन नहीं है, ठीक है। एटीसी टोल्ड विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो नागपुर ग्राउंड स्टैंड बाय। अब स्टैंड बाय का क्या मतलब होता है? हु इज गोइंग टू टेल? वेट, आई विल कॉल यू, इंतजार करिए, मैं आप वापस से आपको कॉल करूंगा, इजंट इट? तो उसने बोला स्टैंड बाय, हम भी रिप्लाई करेंगे क्या? स्टैंडिंग बाय विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू टोल्ड स्टैंड बाय, विल आल्सो से स्टैंडिंग बाय, ठीक है, इंतजार कर रहा हूं। फिर 5 से 10 मिनट तक, सॉरी 10 मिनट तो काफी ज्यादा हो गया, यू आर ऑल्सो हैविंग सम ईगरनेस, राइट, कि कॉल क्यों नहीं कर रहा है यार, परेशान हो रहा हूं, राइट। तो सपोज उसने 5 मिनट तक कॉल ही नहीं किया, उसने रिप्लाई किया ही नहीं, हो सकता है वो भूल जाए, जनरली भूलते नहीं है, बट हो सकता है वो भूल जाए, तो आपको फिर से अप्रोच करना है। हाउ? स्टेशन रेज करके देखो, नागपुर ग्राउंड विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, उसको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो ने तो हमसे बात किया था 5 मिनट पहले, उससे बात करनी है। तो ये क्या किया आपने? स्टेशन रीच किया। स्टेशन रीच करने का क्या मतलब होता है? नॉकिंग द डोर। आप आप सो गए थे, मैं आपको जगा रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला था स्टैंड बाय, आपने कॉल नहीं किया, होता है ना कई बार, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आपको कॉल करता हूँ फिर भूल जाते हैं, तो आपको दोबारा से याद दिलाना पड़ता है कि आपने तो बोला था कॉल किया करूंगा, नहीं किया। सो आप दोबारा से स्टेशन रीच कर दो, ताकि अगर उसको याद आ जाए कि अच्छा अच्छा लिमा किलो किलो से भी कुछ बात करनी थी। और ठीक है, एक और चीज, क्या? उसको याद दिलाओ कि मैं आपके भरोसे बैठा हुआ हूं। हाउ? लाइक दिस, नागपुर ग्राउंड विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, वी आर ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके इंतजार में बूढ़ा हो रहा हूं, ठीक है। वी आर ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके इंतजार में हूं, ठीक है। रिप्लाई कॉल आफ्टर स्टैंडिंग बाय, अगर वो स्टैंड बाय में ज्यादा टाइम ले रहा है। क्लियर? तो ये सब छोटे छोटे टिप, ये भी बहुत बेसिक है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, एंड दीज आर द सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके किसी भी टाइप का सेंटेंस फ्रेम करो, उसके वर्ड इजी हो, लैंग्वेज इजी हो, आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच यू कैन रिप्लाई व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद एटीसी। आई होप कि मैंने जो सब लिखा आप लोगों ने नोट किया, क्योंकि बाद में ये वाला नहीं मिलेगा आपको, ये तो रफ वर्क है, मैं ये मिटा दूंगा, नोट भी डिलीट हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में जाके आप देख सकते हो, डेट इज ए डिफरेंट थिंग, बट मैं जो भी एग्जांपल बताता हूँ ना अपने नोटबुक पे उसको नोट करते जाइए, ठीक है। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ
ग्राउंड रन कॉल, ठीक है। उसने अगर परमिशन दिया तो हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं दिया तो कैसे कैसे रिप्लाई करना है। चलो, अभी तक तो उसने मना नहीं किया कि नहीं दूंगा परमिशन, उसने सिर्फ टाला कि स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। अभी आते हैं सिनेरियो जहां पे वो मना करेगा, ठीक है। आपने कॉल दिया रिक्वेस्ट इंजन रनअप, उसको परमिशन नहीं देनी है, एटीसी वांट टू नॉट परमिट बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। हम लोग गलत नहीं बोलेंगे, बट बिकॉज ऑफ मेनी रीजन ही वांट्स टू डिनाई द परमिशन। हाउ वी विल से विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो नागपुर ग्राउंड इंजन ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड। ठीक है। या फिर आप तो हमेशा एक्सपेक्ट करोगे कि वो हमेशा फॉर्मेट को यूज करके बोलेगा, वो सिंपल भी बोल सकता है। कैसे? नेगेटिव इंजन करेक्शन, नेगेटिव विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो इंजन ग्राउंड रन नॉट अप्रूव नागपुर ग्राउंड। ठीक है। क्या क्या बोला उसने, एक एक करके दोनों सेक्शन को पढ़ते हैं। उसने बोला विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो नागपुर ग्राउंड इंजन ग्राउंड रन नॉट अप्रूव, नहीं दूंगा परमिशन बिकॉज ऑफ मेनी मेनी थिंग। या फिर उसने सीधे बोला नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नो, और नेगेटिव का क्या मीनिंग हमने पढ़ा था कि दैट इज नॉट परमिशन नॉट अप्रूव्ड, परमिशन नॉट ग्रांटेड। वेरी गुड, आपको नॉट परमिशन नहीं मिला। फिर वो बोलेगा विकेट टैंगो लीमा किलो किलो इंजन ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड नागपुर ग्राउंड, यानी नागपुर ग्राउंड ने ऊपर के कॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपको ग्राउंड रन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसको कैसे रीड बैक देना है? वेरी सिंपल, इंजन ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड या फिर इंजन रन अप नॉट अप्रूव्ड विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो, नहीं मिला परमिशन तो नहीं मिला। या फिर और ज्यादा स्मार्ट, मैंने क्या बोला था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपका कंट्रोलर नहीं है, ही इज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर। इंजन ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड रिक्वेस्ट रीजन विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो। देखो ये सब मैं अपने मन से बना बना के बोल रहा हूं आपको, ठीक है। क्यों बना बना के बोल रहा हूं कि ये सारे सिनेरियोज ग्राउंड पे पॉसिबल हो सकते हैं। उसका आंसर हमेशा सिंपल रखना है, जो कि आपको भी समझ में आए, एटीसी को भी समझ में आए, ठीक है। अगर उसने ग्राउंड रन का परमिशन नहीं दिया तो पूछेंगे ना, इंजन ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड एज अ रीड बैक कि आपने मना किया। ओके, क्यों मना किया भाई? रिक्वेस्ट रीजन, कौन पूछ रहा है? विक्टर टैंगो लीमा किलो किलो, वाई इंजन ग्राउंड रन नॉट अप्रूव्ड, तो कुछ तो बताएगा। इवन स्मॉल एयरक्राफ्ट मूविंग बिहाइंड यू, या फिर वेट फॉर 5 मिनट्स आई विल कॉल यू बैक, जो भी अप्रोप्रिएट रीजन दे, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो आस्क देम फॉर द रीजन। अगर हमने कुछ मांगा, हमको मना कर दिया गया, तो क्यों मना कर दिया गया सर, क्या प्रॉब्लम, राइट? रिक्वेस्ट रीजन। So these are the scenarios which can be raised or which can be occurred during the communication or on the ground. So you need to be ready with the answer. ये सब सिनेरियो किसी बुक में नहीं लिखा है और ना ही किसी के नोट्स में मिलेगा, जनरली ये सब नहीं होता है। बट ये सब एग्जांपल दे दे के मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कुछ भी अलग टाइप का आपको एग्जाम में दिखे तो आंसर आपको करने आना चाहिए। क्या है मेन चीज? लैंग्वेज सिंपल रखना है, वर्ड सिंपल रखने हैं, अपने भावनाओं को एटीसी के सामने प्रेजेंट करो, ठीक है। सो अप्रूव नहीं हुआ तो हम ये बोल देंगे। इज दैट ओके टू एवरीवन? यस ग्राउंड रन के फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम? बिकॉज इंजन स्टार्ट होने वाला है तो वेक टर्बुलेंस मैंडेटरली इंक्लूड करना है किसी भी केस में, एंड करंट पोजीशन जरूर से जरूर बताना है, ठीक है। क्या प्रोग्राम है,
अगर कोई प्रोग्राम टेम्पररी वाला है तो टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि इंजन ग्राउंड रन 10 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, आपको दिन भर का तो परमिशन देगा नहीं, या फिर आपके इंतजार में वो एप्रोन के पीछे सबको रोक के रखेगा तो नहीं, उसको दूसरे व्हीकल का भी मूवमेंट देखना है, दूसरे एयरक्राफ्ट का पासिंग बाय भी देखना है। तो आपको टाइम ड्यूरेशन बताना जरूरी है कि मैं स्टैंड 3 को कितने टाइम तक ऑक्यूपाई करूंगा, तब तक वो होल्ड करके रखेगा दूसरे एयरक्राफ्ट को, ताकि वो माइंड मेकअप तो करे कि हमने स्टैंड 4, जो है पोजीशन आपका स्टैंड 4, ये दे दिया है इस एयरक्राफ्ट को इंजन रनअप के लिए। इट मीन्स इसके पीछे 15 मिनट तक कोई भी छोटा एयरक्राफ्ट नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो प्लानिंग करेगा। तो आपको टाइम ड्यूरेशन भी बताना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, और किसी को कोई डाउट किसी टाइप का ओवर दिस पैराग्राफ, सॉरी ओवर दिस आंसर राइटिंग? ओके, अब आता हूं थोड़ा सा लेंदी कॉल पे। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन हो गए, ठीक है। टैक्सी कोई, ठीक है, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन हो गए जो कि बहुत बेसिक, एग्जाम में आते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इससे फैमिलियर रहना है। पार्ट 2 में पूछ देता है कि ग्राउंड रन कैसे करोगे, देखे बताओ, असिस्ट किए हो ग्राउंड रन में? आप बोलोगे यस किया है, बोलेगा ठीक है कॉल देके बताओ। नाउ सबसे बेसिक क्वेश्चन जो कि आरटी में पूछा जाता है, दैट इज ऑब्टेन टैक्सी रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑब्टेन टैक्सी परमिशन, ऐसा रहेगा, ऑब्टेन टैक्सी परमिशन, या फिर रहेगा ऑब्टेन टैक्सी, ठीक है, या फिर रहेगा ऑब्टेन पुशबैक, ठीक है, ऑब्टेन पुशबैक एंड स्टार्टअप, स्टार्टअप परमिशन। सब लोग ऑडियो पे ध्यान देना, अगेन हैंडराइटिंग में मत जाना, मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिख सकता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती है, बट आपको फोकस करना है ऑडियो पे। मैं स्क्रीबल कर दिया करूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। आपको क्या 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 हो सकता है, सबसे पहले देखो अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, पुशबैक, दूसरा टैक्सी का परमिशन, तीसरा स्टार्टअप, इंजन स्टार्ट करना है ना, स्टार्टअप का परमिशन चाहिए। बेसिक कॉल सबसे बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। हाउ दैट कैन गो, जस्ट हैव अ लुक आउट। अभी तक के लिए हमको इतना तो समझ में आ गया कि ये हमारा एयरपोर्ट नागपुर है और नागपुर ग्राउंड का फ्रीक्वेंसी है 121.9। तो अब मैं इस चार्ट को बंद करता हूँ, ठीक है। कैसे कॉल जाएगा, जस्ट हैव अ लुक आउट, ठीक है। अल्फा टेंगो सियरा, आपको कॉल का आंसर नहीं करना है, कॉल का आंसर नहीं करना है, बट लेट मी नो कि इस कॉल में क्या क्या बोलोगे, एक रफ आइडिया बताओ, कॉल का आंसर नहीं Sure, करना है। sir. हाँ, Sure, sir. One is ground, जो जो भी है टावर और जो भी चीज है, और रजिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एयरक्राफ्ट टाइप, and departure airport, arrival airports, and flight rules, like turbulence, जो भी चीज है, and current position, and passenger on board, and security clearance, and ठीक, that's permission. परमिशन और रिक्वेस्ट फॉर द इंटेंशन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो ही हैज गिवन अ क्विक आइडिया क्या क्या रहेगा। आई एम आल्सो गोइंग टू गिव ए कॉल इन ब्रीफ। आप एक कॉमर्शियल ऑपरेशन कर रहे हो, राइट? सो टैक्सी क्लियरेंस कैसे मांगोगे, क्या क्या चीज होनी चाहिए, आप कॉमर्शियल ऑपरेट कर रहे हो ना, तो और पैरामीटर बढ़ जाएंगे। आपके कॉल में हमेशा एक चीज माइंडसेट रखना है आरटी में, आप अपने कॉल में कितना सारा इंफॉर्मेशन यूज करो कि एटीसी को किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। हमेशा एक चीज माइंड में हमेशा मेकअप करके रखना है, क्या, इतने सारे इंफॉर्मेशन शेयर करो कि एटीसी को किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहे, दैट्स ऑल।
सो अपना क्वेश्चन आया ऑब्टेन पुशबैक एंड स्टार्टअप। पहले पुशबैक एंड स्टार्टअप का देख लेते हैं, ठीक है। पुशबैक एंड स्टार्टअप का अलग अलग देखते हैं या एक साथ भी देख सकते हैं, हम बाद में क्लियर कर देंगे। दिस कॉल विल गो टू नागपुर ग्राउंड। नागपुर ग्राउंड। सब मेरे राइटिंग एंड रेट ऑफ स्पीच पे ध्यान देना, कैसे फास्ट स्लो होता है एज पर द राइटिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दोनों एक रिदम में होना चाहिए। नागपुर ग्राउंड, Victor Tango Lima Kilo Kilo on 121 decimal liners, B200 IFR Nagpur to Bhopal. Current position on apron 3 stand 4. Security check completed. Shortcut लिख रहा हूं SCC. Security check completed. Passenger on board 120. Aircraft ready for departure. Request pushback clearance, ठीक है। या फिर रिक्वेस्ट पुशबैक इंस्ट्रक्शंस। देखा क्या क्या डाटा यूज किया। आई एम गोइंग टू ब्रीफ इट अगेन। वी हैव टोल्ड कि वी आर ऑपरेटिंग अ B200 एयरक्राफ्ट that is going under IFR from Nagpur to Bhopal. Why? Because we are operating in commercial aircraft. हमको फ्लाइट प्लान बताना पड़ेगा। Done? Current position on apron 3 stand 4. सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड हो गया। पैसेंजर 120 बैठ चुके हैं। नाउ एयरक्राफ्ट इज रेडी फॉर डिपार्चर। गो अहेड। B200 के लिए पैसेंजर 120। अरे ओके ठीक है। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, गुड वन। मैं आता हूं। सो एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर, रिक्वेस्ट पुशबैक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आपका कॉल थोड़ा रियलिस्टिक भी लगना चाहिए, लाइक विक्टर टैंगो अल्फा टैंगो सियरा टोल्ड। आपका कॉल थोड़ा रियलिस्टिक रियलिस्टिक लगना चाहिए एयरक्राफ्ट के हिसाब से। इस एयरक्राफ्ट के हिसाब से 120 पैसेंजर बहुत ज्यादा है। पैसेंजर ऑन बोर्ड 05, नाउ सेटिस्फैक्टरी। अब हमको पुशबैक चाहिए था। पुशबैक क्या होता है? जनरली अ टोइंग ऑपरेशन, इंजन ऑन नहीं होता है। देखो इस कॉल में मैंने एक टर्बुलेंस बोला ही नहीं, नहीं बोला ना, क्यों? रिलेवेंट नहीं है। पुशबैक इंजन ऑन नहीं हुआ, एक टर्बुलेंस गायब कर लिए। अगर पुशबैक और स्टार्टअप या फिर अपना कॉल जाएगा स्टार्टअप के लिए, ऊपर के सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, ठीक है। यहीं पे हमको मेंशन करना था B200 IFR नागपुर टू भोपाल, वेक टर्बुलेंस लाइट, ठीक है। करंट पोजीशन ऑन एप्रॉन 3 स्टैंड 4, सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, पैसेंजर ऑन बोर्ड 5, एयरक्राफ्ट रेडी फॉर डिपार्चर, रिक्वेस्ट स्टार्टअप परमिशन। स्टार्ट करना है, इंजन ऑन होगा, वेक टर्बुलेंस बोल दिया, ठीक है। जनरली शेड्यूल एयरलाइन में ये दोनों एक्शन एक ही साथ होते हैं, ठीक है, एक ही साथ होता है दोनों कॉल। सो जहां पे अपने कॉल का आइडेंटिफिकेशन दिया B200 एयरक्राफ्ट, ठीक है, विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो ऑन 121 डेसिमल लाइनर, B200 IFR नागपुर टू भोपाल, वेक टर्बुलेंस लो, current position on apron 3 stand 4, security check completed, passenger on board 05, aircraft ready for departure, request pushback and startup permission। दोनों एक साथ मांगे जाते हैं कॉमर्शियल एयरलाइंस में, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है, तो पुशबैक एंड स्टार्टअप एक ही साथ। अब इस कॉल में स्टार्टअप है, इंजन ऑन होगा, विद टर्बुलेंस मेंशन किया। पुशबैक रहता टोइंग था, नहीं मेंशन करता। समझ में आ रहा है कैसे कैसे डिजाइन करना है? कुछ नहीं, सब बेसिक सफलिंग है, नथिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, राइट। कंफर्म इफ दिस कॉल इज क्लियर टू यू। स्टार्टअप एंड पुशबैक समझ में आया सबको?
Roger, sir. Yes, sir. ठीक है. Victor Tango India Zulu November, confirm how much time is available with you so that I can open any one topic only, otherwise I'll left the class here only. How much time is left with you? You can continue. 5 minutes? Like 10, 15 minutes more. I can. 10 minutes. Oh, that is much enough. So we have seen startup and pushback. अब बचा टैक्सी. टैक्सी का ही कॉल इंपॉर्टेंटली डिस्क्राइब करना था, सो दैट में टेक सम टाइम. इसी के लिए मैंने टाइम पूछा. ठीक है. स्टार्टअप एंड पुशबैक सबको क्लियर हो गया? बहुत बेसिक, वेरी सिंपल. नाउ द क्वेश्चन इज ऑब्टेन टैक्सी रिक्वेस्ट. टैक्सी क्या होता है? एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन रहेगा, एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करेगा ऑन द ग्राउंड. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज टैक्सी. टैक्सी है तो एक टर्बुलेंस मेंशन होगा. क्यों? क्योंकि इंजन ऑन हुआ. हाउ दैट विल गो? जस्ट हैव अ लुक आउट. Nagpur ground, Victor Tango, Lima Kilo Kilo on 121.9er, B200 IFR, नागपुर टू भोपाल. कहां से आ रहा है ये सब चीज? अपने फ्लाइट प्लान से. देखो B200 एयरक्राफ्ट नागपुर टू भोपाल, वेक टर्बुलेंस लो, करेंट पोजीशन on apron 3 stand 6. Security check completed. Passenger on board 06. Aircraft ready for departure. Request taxi instructions. अब देखो, एक एक वर्ड को काफी समझदारी से चूज किया जाता है. जब पुशबैक यूज करना था, मांगना था, या फिर जब स्टार्टअप मांगना था, जब इंजन रनअप मांगना था, उस टाइम पे हम लोग यूज करते थे रिक्वेस्ट परमिशन. अभी क्या यूज कर रहा हूं? रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन. व्हाई? टैक्सी जब आप मांगते हो, देन ही इज सजेस्टिंग सम वे कि गो बाय टैक्सी वे अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, जो भी है, यानी आपको वो कुछ ना कुछ गाइड करेगा. तो जब गाइड करेगा तो क्या देगा? वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि ब्रेवो के थ्रू जाओ, फिर डेल्टा 1 यूज करना, फिर लीमा 3 यूज करना और रनवे पे पहुंच जाना. इट मीन्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सम इंस्ट्रक्शन. टैक्सी के साथ हमेशा इंस्ट्रक्शंस यूज होगा कि टैक्सी का क्या दीजिए? इंस्ट्रक्शन. ग्राउंड रन का क्या दीजिए? परमिशन, क्योंकि ग्राउंड रन मैं करूंगा अपने तरीके से. ठीक है. सो वी हैव टोल्ड टू Nagpur ground that we are Victor Tango Lima Kilo Kilo on 121.9er, that is frequency we are using. B200 aircraft IFR Nagpur to Bhopal. Our wake turbulence is low. Current position on apron 3 stand 6. Security check completed. Passenger on board 06. Aircraft ready for departure. Request taxi instruction. This is very simple English grammar, right? Very easy to understand. Nothing significant here. Now, in the response, the ATC may tell like this. क्या? Victor Tango Lima Kilo Kilo, Nagpur ground, taxi via taxiway Bravo, Charlie and Delta. यह इंस्ट्रक्शन उसमें कि हमारे पास 25 टैक्सी वे है, लेकिन आपको कितना यूज करना है? ओनली 3. कौन कौन से? ब्रेवो, चार्ली एंड डेल्टा. तो ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा के थ्रू आप पहुंच जाओगे. ठीक है. टैक्सी वाया टैक्सी वे ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा. होल्ड शॉर्ट, अच्छे से समझना. होल्ड शॉर्ट रनवे 27. मतलब होल्ड शॉर्ट का मतलब होता है पीछे रुकिए. रनवे में एंट्री करने से पहले रुकिए, पीछे रुक जाइए. तो कहां पे रुकोगे? रिमेंबर मैंने कहा था रनवे होल्डिंग पॉइंट. रनवे होल्डिंग पॉइंट पता है सबको? जब हम लोग एरोड्रोम पढ़ रहे थे तब देखा कि रनवे में एंट्री करने से पहले एक पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज
रनवे होल्डिंग पॉइंट, जहां पे रुक के आपको पूछना पड़ता है टावर से कि मैं रनवे में एंट्री कर सकता हूं कि नहीं। तो उसी पॉइंट पे जाके इंतजार करिए, ब्रेवो चार्ली डेल्टा के थ्रू रनवे 27 तक जाओगे। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी मिल गया कि रनवे कौन सा है, रनवे 27। और होल्ड शॉट मतलब एंट्री करने से पहले रुकना। रनवे इधर तो है लेकिन आपको पहले रुक जाना है, रुक के दोबारा से मेरे से पूछो कि क्या रनवे खाली है, तब इंटर करो। ठीक है, होल्ड शॉर्ट रनवे 27। इसका रिप्लाई कैसे करोगे, जस्ट हैव अ लुक, वेरी इजी। उसने आपको कुछ ना कुछ परमिशन दिया तो आपको कुछ ना कुछ डेटा भी दिया, उसी डेटा को रीड बैक दे देना है। क्या, विल टैक्सी वाया, आपने कहा टैक्सी करो तो ठीक है मैं करूंगा, विल करूंगा, टैक्सी वाया, टैक्सी वे ब्रेवो चार्ली एंड डेल्टा। फिर क्या कहा, होल्ड शॉर्ट रुकना, तो आप चाहो तो एक लाइन में लिख दो विल को, विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो, या फिर दूसरे लैंग्वेज में भी थोड़ा सा ज्यादा पेशेंट एंड आज्ञाकारी ओबीडियंट, विल होल्ड शॉर्ट। इसका रनवे 27 यानी रनवे 27 में जाने से पहले मैं रुक जाऊंगा, विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो। ठीक है, ये इसका ऑल्टरनेट हो गया। इज दैट ओके टू यू एवरीवन, हाउ दिस कॉल कैन गो। उसने दिया इंस्ट्रक्शन कि ब्रेवो चार्ली डेल्टा, तो मैं भी उसका रीड बैक दूंगा कि ब्रेवो चार्ली डेल्टा है ना, पक्का ब्रेवो चार्ली डेल्टा, बाद में मत बोलना कि चार्ली नहीं बोला था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसने पैरामीटर दिया, पैरामीटर को क्रॉस चेक करना है बाय द रीड बैक। विल टैक्सी वाया ब्रेवो चार्ली डेल्टा एंड विल होल्ड शॉर्ट रनवे 27। आपने कहा कि पहले रुक जाना, मैं रुक जाऊंगा, अभी तो मैं एप्रॉन पे हूं ना, तो अभी तो जाऊंगा वहां तक, वहां पे जाने के बाद आई विल होल्ड शॉर्ट। एम आई क्लियर टिल नाउ? क्लियर सर। ठीक है, वेरी गुड। सो दीज आर थिंग्स रिगार्डिंग टैक्सी परमिशन। ठीक है, हमने टैक्सी का परमिशन ऑब्टेन कर लिया, डन। आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज बहुत बेसिक है, पहले दिन ज्यादा पढ़ा दूंगा, सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। Plus, some of my candidate is also not having very much time, so that I can extend. Otherwise, also this one is enough. Starting में basic class में इतना काफी है। The 3-4 topics that I have taught today, go have a thorough read out. मैंने जो क्लास में लिख लिख के जो ये 3D हैंडराइटिंग लिखी ना मैंने, जो आपको पता नहीं चल पाया, उसको आप अपने हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखिए। मैंने तो स्क्रिबल कर दिया, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, बाद में पढ़ना किसको है, आपको। तो आप इन सारे चीजों को अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिए, ईच एंड एवरी चीज को समझना है। ठीक है, ताकि कल जब क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर कर पाओ। ऐसा नहीं बोलो कि सर आपने वहां जो लिखा था हैंडराइटिंग नहीं समझ में आया। इसलिए खुद से आंसर पढ़िए, समझिए। और tomorrow when we'll join the class, initially we will have some of the practice of this question only. इसमें परफेक्शन आने के बाद we will upgrade to some more question. ठीक है, we'll move to some more question. Am I clear so far? कॉपी सर। Yes, 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 yes. एग्जाम में जब हम लोग ये सब लिख रहे होते हैं ना, एग्जाम्पल मिनट्स वगैरह, हम लोग खुद का शॉर्ट फॉर्म तैयार कर सकते हैं ना, ऐसे MIN। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म रहना चाहिए? अगर आपके शॉर्ट फॉर्म्स इजीली अंडरस्टैंड होने वाले हैं, आप डेफिनेटली यूज करो, बट कुछ कॉम्प्लेक्स मत यूज कर देना कि जिसका मीनिंग किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक एग्जाम्पल है, ग्राउंड का GND या GND स्टैंडर्ड। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल आप लिखो, ओके। डन। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड का मैंने लिखा ना, सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, इसका फुल फॉर्म मुझे कोई निकाल के दिखाओ दूसरा। ठीक है, अगर बोल दिया एयर ट्रैफिक सर्किट और लिख दिया ATC, अब देखो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बनता है, कोई बोलेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कोई बोलेगा एयर ट्रैफिक सर्किट। तो जहां कॉन्ट्राडिक्शन होने की गुंजाइश है, जिसका कुछ और मीनिंग निकल सकता है, उसको मत यूज करो। ठीक है, बाकी आपके मन में जितने भी टाइप के शॉर्ट फॉर्म आते हैं, जब आपका टर्न आएगा, जब आपको क्लास में आंसर करने का मौका मिलेगा, मैं आपसे आपके नोटबुक का फोटोग्राफ भी मंगवाऊंगा। आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हो अपने नोटबुक पे, एक आप पिक्चर उसका खींच के भेजो।
कि हाउ दैट शैल लुक्स, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपके आंसर लिखने में गैप कितना आता है, वर्डिंग्स में फॉन्ट सही है कि नहीं, वो सब थोड़ा सा चेक करने का गाइडेंस का एक्स्ट्रा सपोर्ट मटेरियल है। तो वहां पे मैं देखूंगा कि आपके शॉर्टकट्स जो है एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आपको कोई शॉर्टकट यूज करना है, प्लीज लेट मी नो वंस, आप एक बार मुझे दिखा लो कि सर ऐसा लिख रहा हूँ, इज दैट ओके। अगर वो एक्सेप्टेबल होगा, आई डेफिनेटली गिव्स यू अ थम्स अप, बट अगर वो कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आई कॉशियसली आई अवेयर यू दैट कि इसको यूज मत करो, ठीक है। तो किसी भी टाइप का शॉर्टकट यूज कर सकते हो, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, बट इनिशियली अप टू सम डेज प्लीज लेट मी नो कि सर दिस शॉर्टकट आई एम गोइंग टू यूज, एम आई ओके टू यूज, और इज दिस शॉर्टकट्स एक्सेप्टेबल और नॉट, ठीक है। बाद में तो अपना अपना तरीके से आप एग्जाम देने लग जाते हो, ठीक है। बेसिक पढ़ने के बाद आप अपने तरीके से एग्जाम देते हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कभी भी किसी का आंसर कॉपी नहीं करना चाहिए। तो तब तक आप फ्री हो जाते हो, फिर अपने स्टाइल को यूज करो, ठीक है। तो उस टाइम तक आप मुझे एक बार दिखा लिया करना, ठीक है। देन आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग हेयर ओनली, विल सी यू टुमारो। तब तक आपको टाइम मिले तो प्रैक्टिस करिए, और कल रेडी रहना फॉर द आंसरिंग, ठीक है Copy. एवरीवन। Copy it, sir. ओके, Yes, sir. गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो। Sir, sir, हाँ, 1 second. यस यस, About this, सर लास्ट टाइम हाँ मैंने हाँ एग्जाम के लिए गया था, ठीक है। हाँ तो हाँ जो भी इंस्ट्रक्टर था वो मेरे को थोड़ा ज्यादा कुछ बोला। एक्चुअली चीज है कि मेरे को क्लियरली आंसर चाहिए करके बोला, मतलब लाइक करंट पोजीशन चाहिए, बाकी एयरबस जो भी एयरक्राफ्ट का डिटेल्स नहीं चाहिए, कहाँ से कहाँ ठीक जा है, रहे हैं वो उसका जरूरत नहीं चाहिए। ये ठीक बहुत है। घुमा दिया, फिर भी एक्चुअली वो थोड़ा गाइड किया मेरे को भी। तो ये सब चीज बोलने का फिर वापस जरूर है कि सर, मतलब ना, एयरक्राफ्ट का टैग वो सब चीज। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। इसको भी डिफाइन करूंगा, इसको भी लेटर ऑन आई डिफाइन। व्हाट अबाउट अखिल? अखिल हैज आल्सो गिवन द सेम एग्जामिनेशन, व्हाट विद हिम? हाँ उसका सेम, भी एक, आगे आगे को भी, और तो सेम सेम सेम। ओके, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। और हाँ, और एक चीज है कि जो वेदर रिपोर्ट था फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसका सेकंड पार्ट है एक जगह पे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली उधर के लिए परमिशन लिया था, तो मेरे को नेगेटिव मांगा। क्या मांगा, क्या मांगा? नेगेटिव नेगेटिव किया कर दिया। हाँ, तो अनदर रूट, ओके अंडरस्टूड, कि आपने एक परमिशन यस। मांगा, उसने डिनाई किया, राइट। हाँ तो हाँ रीरूटिंग के टाइम पे याद है बताए थे कि अगर आपका एक रीरूटिंग कैंसिल हो जाता है कि ही इज नॉट हमें दो रेडी जगह टू, पे यस, गो फॉर अनदर प्लान, राइट, के बाद में मैं गो सेकंड रूट सेकंड टाइप को भी मांगा, लेफ्ट मैं था। हाँ हाँ जी। हाँ, तो वो दूसरा भी सेकंड नेगेटिव पार्ट कर दिया। में लिगोस करके जगह पे ज्वाइन करने के लिए था। हाँ, वो भी नेगेटिव कर दिया। ओके, देन तो रिक्वेस्ट मैंने रीजन रीजन। मांगा, तो बोले हाँ कि ट्रैफिक। मैं मांगा सर, आई हाँ हैव हाँ, जस्ट आस्क्ड ड्यू ट्रैफिक बोला, ठीक है, ड्यू ट्रैफिक बोला। ओके, ड्यू तो इसके ट्रैफिक बोला, बाद जो अपना वेदर रिपोर्ट में आप हाँ हाँ, आप जो ये किया था ना वेदर रिपोर्ट में, हम 30 मीटर तक जा सकते हैं और हाइट ले सकते हैं। हम्म तो फिर वो लिया, इसके बाद क्वेश्चन बोला, देन व्हाट ही रिप्लाइड? नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, देन दिस इज अ गुड कम्युनिकेशन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने भी अपना ड्यूटी सही से किया, हाँ उसने भी वही अपना वो ड्यूटी सही उसके से लिए। की। हाँ, हाँ, मेरे को आखिर उसके लिए बहुत टाइम चला गया था, ओके, यानी इसलिए मेरा उसने नहीं आपका हो टाइम पाया। कंज्यूम करवाया, राइट। उसने इंटेंशनली क्वेश्चन यस को स्ट्रेच किया, होता है, होता है, यस। वो हमेशा हर एक स्टूडेंट के उसमें रहता ही रहता है। तो डिपेंड क्या करता है पता है, आपका रिस्पॉन्स अगर तेज हाँ रहेगा ना, फटाफट रहेगा, हाँ तो हाँ, इसको एक्सटेंड करके जो उसने 10 मिनट टाइम कंज्यूम किया होगा, आप उसको 5 मिनट में निपटा दोगे, ठीक है। ओके इसीलिए प्रैक्टिस करनी ओके। पड़ती है कि आप मुझे परेशान हाँ, करोगे, आई एम रेडी फॉर इट, फटाफट करूंगा। मैंने 10 नॉटिकल माइल का वही था ना। डेविएशन मांगा, मना कर दिया, फिर हाँ, दूसरा मांगा, मना मना कर कर दिया, तीसरा मांगा, आपने एक अलग रीजन दूसरा बता दिया मैंने। कि ट्रैफिक आ गया, ट्रेन को 20 कर हाँ लूंगा। इतना तेज कर पाता हूं, उतना ज्यादा कम टाइम कंज्यूम करूंगा, दैट्स ऑल।
ठीक है। एंड रिगार्डिंग द सेम यू टोल्ड वेरी गुड थिंग। थिंग। हाँ रहता है नॉट अ प्रॉब्लम, नर्वसनेस होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड वेरी गुड थिंग यू टोल्ड कि सर अभी जो आप ये सब बता रहे थे कि IFR नागपुर टू मुंबई ये वो नहीं बोलना है मेरे को, ठीक है। ही वाज सेइंग कि डोंट यूज दिस, राइट। कुछ ऐसे एग्जामिनर Yes. मिलेंगे वो बोलेंगे प्लान क्यों नहीं बताया, यू आर ऑपरेटिंग ए कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट तो प्लान क्यों नहीं बताया। तो मैं वहां पे आऊंगा जब भी पढ़ाऊंगा ना, मैं डेफिनेटली आई थिंक पिछले बार भी बताया था कि सिर्फ इतने पोर्शन को ही हटा देना है टाइम सेविंग के लिए, राइट। ओके। मतलब आपको याद आ रहा है लाइक एनीथिंग हैव आई टोल्ड टू यू आल्सो कि इस चीजों को हटा देना है, यस राइट। सर। हाँ सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। हाँ प्रैक्टिस के फिर लिए हम हटा के बोला हमेशा फिर हाँ बोलो बोलो। वो ऑलरेडी सर बोला है मेरे को रजिस्ट्रेशन, सिर्फ हाँ रजिस्ट्रेशन कॉल कर दो और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस टाइम विल आल्सो प्रैक्टिस। हम लोग दोनों चीज के लिए रेडी रहेंगे। मैंने बताया ना एग्जामिनर्स का थोड़ा सा अलग ही रेशनल जरूरी। बिहेवियर रहता है, हम दोनों चीज जानेंगे। इफ ही नीड अ लेंथी आंसर विल गिव दैट, इफ ही नीड शॉर्ट तो हटाना तो और इजी है, टाइम भी मेरा कम लगेगा, दिमाग भी कम लगेगा, हटा देंगे ये पोर्शन, इतना ही तो हटाना है, राइट। Very good. We'll consider this time. This time consider definitely. I'll consider for you, and I'll make sure कि आपको दोनों साइड से better practice हो, ठीक है? With full description, without full description, ठीक है? But always keep in mind. एक चीज को हमेशा माइंड में रखना है कि इंफॉर्मेशन लैग नहीं करना चाहिए, इंफॉर्मेशन कम नहीं पढ़ने चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो जाए वेल एंड गुड, कम नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी कॉल का जो नीड है, इस कॉल का जो बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे वेट टर्बुलेंस, आपका करंट पोजीशन, ये तो बेसिक एलिमेंट है ना, एयरक्राफ्ट टाइप ये बेसिक एलिमेंट है, तो इन चीजों को जरूर से जरूर बोलो। बाकी वो सिक्योरिटी चेक कंप्लीटेड, पैसेंजर ऑन बोर्ड, ये सब अगर उसको सुनने का मन नहीं है हटा देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर। आएंगे कल हम लोग इसको भी प्रैक्टिस करेंगे दोनों साइड से। विल आल्सो शो कि कितना डेटा स्किप कर सकते हैं इफ देयर इज। हाँ टाइम भी जब बचाना रहता है तो हम लोग ये सब करते हैं, व्हेनेवर विल फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम तो फ्लाइट प्लान फिर डिस्क्राइब नहीं करते भैया, फ्लाइट प्लान ऊपर देखते रहो, मैं तो सीधा आंसर करूंगा, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स, आई विल कम टू दैट। वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव raised the such question in very initial level, so that I'll cover entire thing for the full session, ठीक है। ओके चलो, okay, good one. We'll ओके सर, गुड नाइट। see you tomorrow 9 o'clock. Good night everyone. ओके ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट।